हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू दिस क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 165 डेज स्ट्रैटेजी। हम आज 165 डेज की स्ट्रैटेजी क्लास पढ़ रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स। ओके, तो प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू लुक इनटू दैट। 165 डेज नाउ आर लेफ्ट for prelims 2021. 2021 के prelims को, that is on 27th of June 2021, we have just 165 days left. So how you can cover current affairs? The questions that we are going to deal with in today's class is, are current affairs important for prelims? If yes, how many months current affairs we have to prepare? How we have to prepare? What are the resources? Can we self-prepare the current affairs by making notes? Or we have to rely on the coaching materials for the notes, or we have to rely on the current affairs magazines for the current affairs notes. Then in 165 days, how much time to be allotted to current affairs and how much times to be allotted to the static portion? Current affairs को कितना time मिलना चाहिए, static portion को कितना time मिलना चाहिए, ठीक है, that we are going to discuss in today's class. तो आज की क्लास काफी important है, ठीक है. Make sure that you are joining this class and staying at till the end of the class, because most of the important myths related to current affairs and prelims we are going to burst them down today. Okay, तो शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी. Now before we start the class, here's a small announcement. You can follow us on our Telegram channel, that is Simplifying UPSC Vidhis. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आप हमको फॉलो कर सकते हो फॉर दी क्लास नोट्स एंड फ्री क्लासेस. सारी फ्री क्लासेस, क्लास नोट्स यहाँ पर अपलोड हो जाते हैं, ठीक है. द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज रिलेटेड टू अनअकैडमी कॉम्बैट. Unacademy has launched Unacademy Combat, which is India's most competitive gamified UPSC CSE battle, and it's going to be conducted on 17th of Jan 2021 at 11 AM in the morning, that is tomorrow. कल 11 बजे सुबह ये टेस्ट आपका होगा, and it's in a game version. एक गेम फॉर्मेट में ये टेस्ट तैयार किया गया है, wherein there will be 6 levels. आपके पास टोटल 6 levels होंगे, 6 sections होंगे, and there will be 13 challenges which will be given to you. Okay, it's like a game. Okay, preliminary exam को हमने गेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके लिए प्रेजेंट किया है. There will be total 60 questions and you will be getting your all India rank. आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी इसमें, ठीक है. यू हैव द चांस टू विन 3 months UPSC CSE Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट. आपके पास चांस है कि Unacademy Plus का 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. इफ यू हैव द रैंक बिटवीन 1 to 3, अगर रैंक 1 से 3 में आपका आता है नंबर, तो आपको इजीली यू कैन विन दिस सब्सक्रिप्शन. Now the second important the prize is, if you have rank 4 to rank 150, then you will be getting rupees 1000 Amazon vouchers free of cost. आपको 1000 रुपए तक के Amazon के vouchers मिलेंगे, ठीक है. So these are the best chances for all of you in order to secure your place and win this battle, competing with all the other IAS aspirants in India. Okay, now you will go to the Unacademy Learning app. Download the Unacademy Learning app. Go select the goal as UPSC CSE in the app. Go to the test section. In the test section, enroll in the combat. They will ask you for the code. Type this code ARPITA10. ओके, वो आपसे कोड के लिए बोलेंगे, आपको ये अर्पिता 10 कोड डालना है. इससे आप कोई भी क्लासेस जो हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर देख सकते हो, ठीक है. कोई भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो ये कोड यूज करके. कोई भी मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो ये मॉक टेस्ट ये कोड यूज करके, ठीक है. सो द लिंक इज गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर दैट यू आर इनरोलिंग इन दिस कॉम्बैट दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड टुमारो एट 11 AM in the morning. ओके, तो कल 11 बजे होने वाला है ये कॉम्बैट, जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा. ऑल राइट, so in this strategy session we are going to deal with the 165 days prelim strategy for current affairs. Okay, so I hope you all are aware that only few days are left. Few days, why am I saying that? Because 100+ days जो होते हैं वो ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है. to say that 165 days are remaining, right, it's easy, but actually you will see that these 165 days will fly away like anything, ठीक है. उड़ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कहाँ चले गए. So that is why we have to plan each and every day with utmost attention.
एंड स्ट्रैटेजी। हमें बहुत ही चालाकी से एक एक दिन प्लान करना है। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट करंट अफेयर्स, जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आवर माइंड इज, पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, आर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट? Because in 2020 prelims we saw that the number of questions from current affairs were very low. हमने 2020 के प्रीलिम्स में देखा था कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स में से जो आए थे वो बहुत कम थे. So the one question that the aspirants they ask is, ma'am, current affairs are really important for prelims. Do we have to prepare current affairs? If we prepare the static portion, that is not enough. So the answer is yes, current affairs is very important. Current affairs बहुत important है. Why? Because if you are seriously preparing for UPSC, you must have gone through the last 10 years question paper. अगर आप सीरियसली यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपने लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर तो देखे होंगे. All of you must have gone through the last 10 years question papers, right? If you are preparing for this exam seriously and dedicatedly, okay? And the first thing that any aspirant, right, any serious aspirant, the first thing that he does is, or she does is, going through the previous year question paper. कोई भी serious aspirant जो होता है, पहला काम उसका यही होता है कि वो previous year question papers देखता है to understand the pattern of the questions. And if you have gone through the last 10 years question paper, you must be knowing that the questions from current affairs have been highly fluctuating in nature. Questions जो current affairs से आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा fluctuating है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन 2000 आई गेस 14 और 13, ठीक है, देयर वर हार्डली 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स. 2014 या 2013 में सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चंस थे जो करंट अफेयर्स में से पूछे गए थे. ठीक है, बट व्हेन इट केम टू 2015 and 2016, there were around 35 to 40 questions that came from current affairs. जब बात आती है 2015 और 16 की, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन. सी इन 2014-13 they are asking only 1 or 2 questions. Then all of a sudden in 2016 they bombarded the paper with 35 to 40 questions directly coming from the current affairs. Okay. Then in 2017 there were at least 25 questions from the current affairs. But in 2020 only 4 to 5 questions were directly coming from the current affairs. They were directly asked from the current affairs. Only 4 to 5 questions. You can see the change. आप fluctuation देख सकते हो कितना ज़्यादा है. So that does not mean that the number of questions were less in 2020. That does not mean that you will not prepare current affairs. ठीक है, मान लो आधे से ज़्यादा पेपर current affairs का 2021 में आ गया, क्या करोगे? ठीक है, so it is highly unpredictable. That is why we need to be very well prepared. Plus, when it comes to UPSC, you are going to become the administrators. And an administrator's job is to keep it himself or herself updated about the current happenings, current environment. ठीक है, तो आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हो. एडमिनिस्ट्रेटर का तो जॉब ही यही है, ड्यूटी ही यही है, वर्क प्रोफाइल ही यही है. आपके आसपास जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए. इफ यू आर नॉट अपडेटेड, that is not the quality of an administrator who is not updated about the current happenings. ठीक है, it is your first sole responsibility to keep yourself updated of what is happening around you. ठीक है, only by that, through that updation you can administer properly. अगर आप updated नहीं हो तो administer नहीं कर सकोगे. ठीक है, that is why you have to make a habit that you are following the current affairs on a daily basis. आपको आज ही से ये habit बनानी होगी कि आप daily basis पे current affairs को follow कर रहे हो. And in mains and interview it is all about current affairs only. So you cannot leave current affairs. And I am expecting that all of you are not just preparing for prelims, you are also preparing for mains. मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ prelims के ऊपर नहीं सोच रहे हो, आप यही सोच रहे हो कि मुझे prelims, mains, interview तीनों क्लियर करना है. ठीक है, आप तीनों को एक साथ दिमाग में रख रहे हो. ठीक है, सो इफ यू आर कीपिंग मेंस एंड इंटरव्यू आल्सो इन योर माइंड, देन यू मस्ट स्टडी करंट अफेयर्स. आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा. एंड यूपीएससी इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स. इट कैन आस्क 1 or 2 क्वेश्चन आल्सो, और all of a sudden it can ask 45 to 60 questions alone from current affairs. Okay, so preparing current affairs is a must. First doubt is solved that current affairs are a must, you have to prepare them. Now the second doubt of a student is, student का जो second doubt होता है वो क्या होता है? The second doubt of a student is, ma'am, how many months of current affairs we have to prepare? ठीक है, कितने महीने के current affairs पढ़ने हैं हमको?
नाउ अगेन दिस इज अनप्रेडिक्टेबल, हाईली फ्लक्चुएटिंग। यूपीएससी कभी कभी आपसे 5 साल पहले का भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। सो इफ वी एनालाइज द लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर, अगर हम लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें, then we'll see that UPSC is targeting last 2 years current affairs. UPSC जो है वो लास्ट 2 years के करंट अफेयर्स जो है वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। सो यू कैन से 24 months लास्ट आपके एग्जाम डेट से लास्ट 24 months के करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करके चलो, not even last 1.5 years, it is targeting mostly last 2 years current affairs. From your exam date you have to prepare last 2 years current affairs. आपके एग्जाम डेट से पिछले 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं। Now right now currently whatever newspaper you are reading, prepare that, make notes out of that, revise them, okay, but the backlogs, for example आपने आज से preparation शुरू करी है, you have started your preparation from today itself, okay, so you must be having a backlog, आपके पास backlog तो होगा ही होगा, ठीक है। तो वो backlog कैसे cover करें, how to cover the backlog of current affairs, ठीक है, कहाँ से cover करें, for that you can go through any reputed institutes coaching material। आप किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का जो करंट अफेयर की मैगजीन्स होती है, सो अनअकैडमी हैज आल्सो लॉन्च्ड अनअकैडमी आर्टिकुलेट एंड ऑल दीज मैगजीन्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी मैगजीन्स जो होती है ना, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एवरी कोचिंग सेंटर, एवरी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर प्रोवाइड्स द करंट अफेयर मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट ऑनलाइन फ्री में मिलता है, आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो अनअकैडमी आर्टिकुलेट जो मैगजीन है, अब देखो कोई एक मैगजीन किसी से बेहतर हो ऐसा नहीं है, all the magazines are same amount of current affairs, same amount of topics are covered in all the magazines. You do not have to run after 10 magazines. ये mistake मत करना, do not commit this mistake, ठीक है, कि आप 10 magazines के पीछे जा रहे हो। You just have to follow one magazine, एक ही magazine, 2 magazines भी नहीं cover करनी, एक, stick to one magazine or else you will waste your time. बिकॉज करंट अफेयर्स प्रिपरेशन टेक्स टाइम, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में टाइम लगता है, उसमें भी अगर आप पूरा दिन 2 मैगजीन पढ़ने में लगाओगे तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। एंड करंट अफेयर्स आर द सेम, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम यू हैव टू सेव योर टाइम, ओके। सो रेफर एनी वन करंट अफेयर रिलेटेड मैगजीन, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा अपना एफर्ट्स यूज करने हैं, हार्ड वर्क, थोड़ा सा मेहनत करो, अपने सर्च करो अनअकैडमी आर्टिकुलेट पीडीएफ, दे विल गिव यू मंथ वाइज मैगजीन ऑफ अनअकैडमी आर्टिकुलेट। तो मंथली मैगजीन्स आपको कवर करनी है, यू कैन कवर ईयरली मैगजीन ऑल्सो और मंथली मैगजीन ऑल्सो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ना टारगेट फिक्स करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फिक्स अ टारगेट ओवर हियर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं टारगेट्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट टारगेट्स, तो टारगेट्स आपको वीकली रख सकते हो आप, यू कैन कीप वीकली टारगेट्स और यू कैन कीप मंथली टारगेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पिकिंग अप जैन 2020 मैगजीन, मान लो आप जैन 2020 के करंट अफेयर की मैगजीन पिकअप कर रहे हो, ठीक है। सो यू कैन कीप अ वीकली टारगेट दैट विद इन 4 days in a week, 7 days होते हैं एक हफ्ते में, तो 7 days में से आउट ऑफ 7 days आई एम कीपिंग 4 days only for this magazine. I will cover this magazine within 4 days. Or if you think that no, you will not be in a position to cover this magazine in 4 days because you have other engagements also, you can keep 1 week's target. आप एक हफ्ते का टारगेट रख सकते हो कि एक हफ्ते में पूरा जैन 2020 की जो मैगजीन है वो कवर करके रखूंगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर आपको पूरे डे में करना क्या है, इन अ डे you can invest 2/3 of the day in your static portion. 2/3 of the day है जो आप static portion को प्रिपेयर करने में लगा सकते हो, and rest of the day you have to keep it aside for current affairs preparation, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को। सो अनअकैडमी आर्टिकुलेट की मैगजीन ले सकते हो, मंथली ईयरली मैगजीन्स आर अवेलेबल, जस्ट टाइप इट ऑन गूगल, यू विल गेट इट फ्री पीडीएफ। एंड कीप टारगेट्स, आपको क्या करना है, टारगेट्स रखने हैं, ठीक है। सो टारगेट्स कैन बी वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स, एंड मेक श्योर दैट लास्ट 24 months करंट अफेयर्स यू आर कवरिंग थ्रू दीज मैगजीन्स, ठीक है। पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स आपको इन मैगजीन्स के थ्रू कवर करने हैं। नाउ देयर आर मेनी वेबसाइट्स हु आर प्रोवाइडिंग डेली करंट अफेयर्स, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती हैं। डू नॉट फॉल इनटू दैट ट्रैप, उस ट्रैप में गिरना मत, ठीक है, बिकॉज द डेली करंट अफेयर्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग दे आर इनकम्प्लीट, ठीक है। सम ऑफ देम दोज करंट अफेयर्स आर टेकन फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर, सम आर टेकन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, तो ऐसे करके कुछ 10 करंट अफेयर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं वो लोग डेली बेसिस पे,
ये नहीं करना. If you think that by watching daily videos and daily current affairs from the websites our work is over, then you are mistaken, highly mistaken. ठीक है. Until and unless you read the newspaper yourself, you are never going to develop the answer writing habit. जब तक आप खुद से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कोई कंटेंट नहीं आने वाला. When you read the newspaper yourself, you analyze it. When you read the editorials yourself, you analyze them, and that is how you are going to prepare the content over here, and that is how you are going to attempt your mains. If you do not want to attempt your mains, then you can get dependent on any video or any website. But if you really want to stand on your own feet for mains, then you have to read the newspaper yourself. आपको इतना एफर्ट्स तो करना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा. यू हैव टू लूज द ग्रिप ऑन योर लेजीनेस of depending on the videos or the websites for the current affairs. You have to lose that grip. ठीक है. If you want to clear mains, actually अगर आप मेंस को और प्रीलिम्स को क्लियर करना चाहते हो, सिंसियर हो, तो आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना है. डेली इन द मॉर्निंग गिव 1 hour और 30 minutes टाइम. 1 घंटा 30 मिनट का टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग को देना है आपको. ठीक है. एंड एडिटोरियल्स आर अ मस्ट. इवन इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन दी वेबसाइट्स एंड अदर वीडियोज फॉर डेली करंट अफेयर्स, डू नॉट स्किप रीडिंग द एडिटोरियल्स. मान लो आप करंट अफेयर्स और किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो, एडिटोरियल स्किप मत करना. यू हैव टू रीड द एडिटोरियल योरसेल्फ. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर पर्सन फॉर एनालाइजिंग द एडिटोरियल फॉर यू, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो ना कि कोई वीडियो आप देखोगे वो आपके लिए एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे, ट्रस्ट मी आप अपना टाइम पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे हो. क्योंकि अगर आप एनालाइज करना भी दूसरों से ही सीखोगे तो फिर खुद से क्या एफर्ट आए आपके यूपीएससी में. ठीक है. खुद से इंटरव्यू में कैसे आंसर दोगे, खुद से मेंस में क्या लिखोगे, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन मेंस. ठीक है. यू आर नॉट गोइंग टू क्रैम अप थिंग्स, बिकॉज क्रैम रटी हुई चीज वहां हेल्प नहीं करेगी. एंड इन इंटरव्यू दे विल जज योर पर्सनैलिटी. If you have crammed up things, you have not put in effort to analyze things, then in the interview it will get revealed. ठीक है. इंटरव्यू में दिख जाएगा उन लोगों को. So that is why it is said that editorials you have to read daily. इसलिए कहा जाता है कि एडिटोरियल पढ़ो. That is why so many toppers are saying read the newspaper yourself, read the editorials yourself. Okay? If you find the editorials a little tough, अगर आपको लगता है कुछ ऐसा पैराग्राफ है जिसमें आपको डाउट आ रहा है, then you can refer to those videos to clarify your doubt. Okay, but don't be dependent. So daily what you have to do is daily current affairs preparation you have to do by reading one newspaper, The Hindu or The Indian Express. एक लेना है. अब 2 न्यूज़पेपर पढ़ने मत बैठ जाना. Do not try to read both the newspapers. Again you will be wasting your time. Pick any one newspaper. My recommendation will be for the Hindu newspaper because आपका जो CSAT का पेपर आता है ना, the passages in CSAT that are coming, that are taken from the Hindu editorials only. So my recommendation will be read the Hindu newspaper. It is good for your vocabulary also, plus it's highly analytical in nature. ठीक है. तो आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो. It will save your time as well, and it incorporates the current affairs from PIB. PIB के जो current affairs होते हैं ना, वो हिंदू में incorporate होते हैं next day. तो इसलिए मैं आपको हिंदू न्यूज़पेपर recommend करूंगी. ठीक है. So read the Hindu newspaper early in the morning. You can invest 1.5 hours in reading the newspaper, and whatever is most important, जो भी बहुत important है उसी को note down करना. And in the Hindu newspaper, if you do not get the newspaper, ठीक है, hard copy नहीं मिलती है, so you can take subscription of Hindu newspaper online, but do not study that free PDF जो आपका free मिलता है ना हिंदू वेबसाइट पे जो न्यूज आते हैं, वो बहुत cluttered होते हैं. The news or current affairs on the Hindu website, they are very cluttered. They are not organized. So take the subscription, or there are many Telegram channels which provide free PDFs on the Hindu newspaper. काफी ऐसे Telegram channels हैं जो आपको हिंदू न्यूज़पेपर के आपके स्टेट वाइज फ्री PDFs प्रोवाइड करते हैं. तो आपको न्यूज़पेपर का PDF पढ़ना है. You have to study the newspapers PDF. Okay, वेबसाइट या ऐप पे मत चले जाना. वहां पर क्या होगा, बहुत क्लटर्ड वे में न्यूज अवेलेबल है, आपको समझ नहीं आएगा क्या पढ़ूं. ठीक है. सो आइदर सब्सक्राइब द हिंदू न्यूज़पेपर ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर लो. इन 999 रुपीज दे आर गिविंग पूरे साल का न्यूज़पेपर. ओके. और यू कैन गो टू द टेलीग्राम चैनल्स. हिंदू जोन करके भी टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से हिंदू न्यूज़पेपर को PDF को डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है. पॉइंट क्लियर हो गया. तो आप PDF को पढ़ना है, वो भी स्टेट, अपना जो भी स्टेट रिलेटेड न्यूज़पेपर है, स्टेट रीजन वाइज न्यूज़पेपर यू हैव टू स्टडी. इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ, रीड द न्यूज़पेपर ऑफ लखनऊ एडिशन. अगर आप चेन्नई के हो तो चेन्नई एडिशन पढ़ना है. इफ यू आर फ्रॉम चेन्नई, रीड द चेन्नई एडिशन. इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, रीड द दिल्ली एडिशन. सो यू हैव टू रीड द एडिशन ऑफ योर ओन स्टेट. ओके.
पॉइंट क्लियर हो गया? अहमदाबाद के हो तो अहमदाबाद एडिशन पढ़ना है, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज दैट डाउनलोड द करंट अफेयर मैगजीन्स। अनअकैडमी आर्टिकुलेट को डाउनलोड कर लो फटाफट, मंथली मैगजीन्स ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, ठीक है, पहले लास्ट 12 मंथ से स्टार्ट करो, फर्स्ट स्टार्ट फॉर द लास्ट 12 मंथ्स, ओके। Then you have to, after downloading it, from the next day, from tomorrow in the morning, read the newspaper, and whatever most important, most striking news related to your GS syllabus, if you find it in the newspaper, make sure you are summarizing it in your own words. आप जो भी आर्टिकल पढ़ते हो उसको as it is copy paste नहीं करते, this is not note making. There are many students who are copying pasting as it is all the articles from the newspaper in their register, and they think that we are making notes. You are wasting your time, you are not making notes, okay. So how to make notes? Notes कैसे बनाने हैं? For example, you have studied any article on coronavirus vaccine. आपने कोरोना की वैक्सीन के ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, any editorial, any article. For example, let's say आप editorial पढ़ रहे हो on the distribution of corona vaccine, okay. So after reading the editorial, you have to sum it up. And whatever you read, make sure 10% of that should be incorporated in your notes. फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड 100 वर्ड्स, मान लो आपने 100 वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, तो 100 वर्ड्स पढ़ने के बाद उस जो उसके नोट्स बनाओगे वो आपके कितने होने चाहिए? आपके कम से कम 10 वर्ड्स में आ जाने चाहिए नोट्स, ठीक है। सो इफ यू हैव स्टडीड सम 100 वर्ड्स, नोट्स शुड बी इन 10 वर्ड्स, ठीक है, दैट इज हाउ यू हैव टू मेक नोट्स। इसको कहते हैं नोट मेकिंग। 10 to 15 वर्ड्स के आपके नोट्स आ जाने चाहिए, दैट इज हाउ यू समराइज थिंग्स, ओके। नाउ ओवर हियर व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर आपको करना क्या है? So what you have to do is, after reading this editorial, ask yourself, अपने आप से पूछो, analyze कैसे करते हैं? How to analyze? Ask yourself questions. What did I read? मैंने पढ़ा क्या अभी? I read about the distribution of coronavirus vaccine. मैंने पढ़ा distribution के बारे में, how vaccine is distributed. Vaccine को distribute कैसे करते हैं nation में, ठीक है। Then over here, next important point, हाउ दी वैक्सीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? तो जो स्टेप्स दिए होंगे एडिटोरियल में, उन स्टेप्स को अपनी लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ में, जो कि जिसमें आपके कम से कम 4 लाइंस होनी चाहिए, उसमें सम अप कर दो। इन वन पैराग्राफ हैविंग 4 लाइंस, सम अप द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर ऑफ द वैक्सीन इन योर ओन वर्ड्स। नाउ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कॉपी पेस्ट ईच एंड एवरी वर्ड इन द न्यूज़पेपर इन देयर रजिस्टर। ट्रस्ट मी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आर डूइंग दैट। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो। Whenever you come across any important word, any new word, ठीक है, then search for it meaning. Don't copy paste it in your register. उसका meaning देखो, ठीक है। After looking at the meaning, only then try to use that word in your summary. उस word को अपनी summary में use करो, उसको as it is पूरी line के समेत copy paste मत करो. Do not copy paste that important word with the line, along with the line in your register. ठीक है, बिकॉज आपने जो भी पढ़ा उसको कम से कम आधे पेज में समराइज करना है। वॉट एवर यू हैव स्टडीड इन द एडिटोरियल, यू हैव टू समराइज इट इन हाफ अ पेज। नाउ व्हाई एम आई गिविंग यू दिस टेक्निक? बिकॉज दैट इज हाउ you are going to learn the art of writing answers in mains. In mains also you are being given word limit, 150 words, 200 words, 250 words, 100 words, 300 words, 1000 words. Mains में आपको word limit दी जाती है ना? Why they are giving you word limit in mains? Because they want to test in less few amount of words how can you express your answer. आप कम शब्दों में अपनी बात को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, and only that student can express his mind in little amount of words. Only that student can do that. The student, you know, if he has understood the particular question or understood the content analytically. अगर आपने बहुत अच्छे से एनालिटिकली किसी बात को समझ लिया है, आप उसको बहुत कम शब्दों में किसी को भी समझा सकते हो। But only if you have not yourself understood the concept, you will take entire 1 page, entire 2 page, entire 1 hour to make the other person understand your point of view. Okay? जब आपको खुद से बात समझ नहीं आती ना ढंग से, तो आप पूरा 1 घंटा ले लेते हो दूसरे को समझाने में, ठीक है। बट अगर आपको बात समझ आ गई है अच्छे से, तो आप 5 मिनट के अंदर सामने वाले को समझा दोगे, ठीक है। दिस इज द आर्ट ऑफ टीचिंग ऑल्सो, यही टीचिंग की भी आर्ट है, ठीक है। वॉट एवर यू स्टडी, जो भी आप पढ़ते हो, इफ यू आर मेकिंग नोट्स एंड यू आर एंडिंग अप वेस्टिंग योर एंटायर 2 hours इन मेकिंग नोट्स, देन दैट मीन्स यू योरसेल्फ हैव नॉट अंडरस्टूड इवन अ वर्ड, ठीक है। अगर आप कुछ करंट अफेयर पढ़ रहे हो और आप कम से कम 2 से 4 घंटे ले रहे हो नोट मेकिंग में ही, इसका मतलब आपने खुद से कुछ नहीं समझा उस न्यूज़पेपर में। वॉट यू आर डूइंग इज कॉपिंग एंड पेस्टिंग,
ठीक है. So here, if you read the newspaper, if you read any article, make sure you are understanding it first. You are not wasting your time in noting it down before understanding. अच्छा word दिख गया, चलो टेपने शुरू कर दो. नहीं, पहले समझो. Whatever important word you come across, search for its meaning and then start reading. उस word का meaning देखो, समझो और फिर आगे पढ़ना शुरू कर दो. Only after you understand that properly, make sure that you summarize it in 10% of the words. जो भी आपने पढ़ा, 500 शब्द पढ़े, ठीक है. अगर आपने 500 शब्द पढ़े हैं तो 50 शब्दों में आपका नोट होना चाहिए. आपने 1000 शब्द पढ़े हैं एक एडिटोरियल में, यू हैव रेड 1000 वर्ड्स इन एन एडिटोरियल, तो कम से कम 100 शब्दों में नोट्स होने चाहिए. सो द नोट्स शुड बी इन 100 वर्ड्स. दिस इज हाउ यू हैव टू समराइज. इससे ज्यादा एक्सीड करते हो मतलब नहीं समझा आपने. इफ यू एक्सीड दिस वर्ड लिमिट, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड द आर्टिकल. ठीक है. अगर आप अपने आप को इस प्रैक्टिस के साथ ट्रेन करोगे ना, तो 21 दिन के अंदर अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओगे नोट मेकिंग में और एनालिटिकल स्किल्स में. If you follow this technique of 10% note making, then you will become an expert in note making and also in analyzing the current affairs. This is how you have to make notes. So daily you have to read the current affairs, analyze them, make notes, revise them at the end of the day. ठीक है. And pick up any one monthly magazine. Jan की ले ली, Feb की ले ली, March की ले ली, April की ले ली, any one monthly magazine. Try to within the targets, set targets, try to finish it. मान लो आपने 4 दिन का टारगेट रखा है तो 4 दिन में खत्म होनी चाहिए. 4 दिन से 1 दिन भी ज्यादा ले रहे हो मतलब आपने डिस्ट्रैक्शन हुआ है या टाइम वेस्ट किया है. इफ यू आर टेकिंग मोर देन 4 days एंड बी रियलिस्टिक. ये नहीं कि मैं तो 2 दिन में खत्म कर दूंगा, नहीं. बी रियलिस्टिक. यू नो योर कैपेबिलिटीज. आपको पता है आपका सिचुएशन क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है. यू नो द लेवल ऑफ रिटेंशन पावर योर ब्रेन हैज. हर एक इंसान का रिटेंशन पावर डिफरेंट होता है. कोई 2 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर लेता है, कोई वही सब्जेक्ट खत्म करने के लिए 2 महीने लेता है. ठीक है. स्टूडेंट कैन कंप्लीट अ सब्जेक्ट इन 2 days, but a student who has less retention power will take 2 months to complete the subject, right? So you know your capability, you know your retention power. Accordingly set targets. If you keep unrealistic targets, then you will get demotivated if you will not achieve them or attain them. जब आप अपने targets unrealistic रखते हो, जब आप उनको achieve नहीं कर पाते तो आप फिर demotivate होते हो. We have to eradicate any element of demotivation from our lifestyle. So keep realistic targets. ठीक है. आपको realistic targets रखने हैं एकदम. Now daily current affair practice you are doing, daily you are reading the newspaper, you are making notes, revising them, then you are also memorizing the last few years current affairs. But where is the revision, where is the mock test? Practice कहाँ हो रही है भाई. ठीक है. So you have to incorporate practice also. आपको practice भी incorporate करना है अपने daily schedule में. So daily there are T20 daily current affairs which are launched by Unacademy on the Unacademy learning app. Unacademy का जो learning app है उस पे free of cost daily current affairs आपके टेस्ट होते हैं. daily 20 questions from the Hindu newspaper, the Indian Express newspaper, they are asking 20 questions daily at 7:30 PM. डेली टेस्ट होता है. ऐप के टेस्ट सेक्शन में जाओगे वहां आपको मिल जाएगा. इन द टेस्ट सेक्शन ऑफ द ऐप यू विल फाइंड द क्विज. ठीक है. सी ऑल सेक्शन होगा, वहां जाओगे वहां क्विज मिल जाएगा. इट्स T20 डेली करंट अफेयर्स. नाउ आफ्टर गिविंग दिस टेस्ट, इट्स लाइव टेस्ट. ओके. ये टेस्ट देने के बाद आपको क्या मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक मिलेगी अपनी. यू विल बी गेटिंग योर ऑल इंडिया रैंक. जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उसके सॉल्यूशंस को नोट डाउन कर लेना. व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव मार्क्ड इनकरेक्टली, नोट डाउन द सॉल्यूशंस, रिवाइज देम. इट विल enhance your memory, it will enhance your current affairs preparation. Now the question is that you are making notes from the newspaper, okay, but should you make the notes from your magazines also? The answer is no. मैगजीन जो मंथली मैगजीन है वो इतनी होलिस्टिक है, उसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. यू कैन अंडरलाइन और हाईलाइट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपको लगता है कोई पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैगजीन में ही हाईलाइट कर दो. ठीक है. हाईलाइट इन द मैगजीन ओनली, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग नोट्स फ्रॉम द मैगजीन. दैट इज अनरियलिस्टिक. वो तो बहुत बेकार है भाई. मैगजीन बनाई इसलिए कि आपकी रिविजन हो जाए. मैगजीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ नोट्स ओनली. ठीक है. सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स फ्रॉम द मैगजीन, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम. डोंट डू दैट. वो मत करना. ठीक है. सो वट एवर मैगजीन्स यू आर स्टडिंग, those are complete summary of the newspaper. Summary है newspaper का. So if you find any important point, then you can highlight in the magazine itself. No need to separately make notes. But if you think then there are some years, some acts, some schedules or some articles that are very important,
यू विल फॉरगेट देम, आप भूल जाओगे, तो उसको आप लिख सकते हो अपने जीएस रजिस्टर्स में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ रजिस्टर फॉर जीएस पेपर 2 and you find any article important schedule in the magazine which you think you will forget afterwards, write it down in your GS paper 2. अगर मान लो किसी स्पीशीज का नाम है, आपको लग रहा है आपको याद नहीं रहेगा, तो आप अपने जीएस पेपर 3 के रजिस्टर में उसको लिख लो, ठीक है. बट मैगजीन्स में ही हाईलाइट करो एंड हाईलाइट इन द मैगजीन इटसेल्फ. एंड जब भी आप रिवाइज करो, हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज कर लेना. whenever before prelims you will again revise the magazines, revise the highlighted portion. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. पूरा पूरा मैगजीन मत पढ़ने लगना, हाईलाइटेड पोर्शन को आप अपना प्रॉपरली पढ़ लेना. ठीक है, पॉइंट क्लियर. अब बात आती है कि एडिटोरियल्स की. ठीक है, वो हमने डिस्कस कर. सो फार वी हैव स्टडीड दैट यू हैव टू पिक अप वन मैगजीन फॉर करंट अफेयर एंड यू हैव टू पिक अप वन न्यूज़पेपर फॉर करंट अफेयर. Then you have to give your current affairs test. Daily test आपको देने हैं, daily you have to give without any fail. Train yourself like the army people. जैसे आर्मी पीपल अपने आप को ट्रेन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे खुद को ट्रेन करना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. So far we have covered this. Now before moving forward, here's a small announcement. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2021 के लिए, if you are preparing for 2021, cover your syllabus, you want to enrich your essay. अगर आप essay prepare करना चाहते हो, you want to prepare for GS paper 4, any other subject that you have left, then you can go through the 6 months batch for UPSC CSE prelims that has been started on Unacademy Plus and it is going to start from 18th of Jan. 18 जनवरी से ये नया बैच शुरू हो रहा है आपका Unacademy पर. ठीक है, 6 महीने का बैच है. इसमें आपको पूरा कवरेज, प्रीलिम से पहले प्रीलिम्स का पूरा कवरेज दे दिया जाएगा. ठीक है, द इंटायर कवरेज ऑफ प्रीलिम्स विल बी डन इन दिस बैच बिफोर प्रीलिम्स विद टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको प्रीलिम्स कवर करवाया जाएगा अलोंग विद टेस्ट सीरीज. ठीक है, कॉन्टिन्यूस आपकी टेस्ट सीरीज होंगी, तो आपको माइंडफुली ट्रेन किया जाएगा. यू विल बी ट्रेन्ड, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स. द इंटायर सिलेबस विल बी कवर्ड, प्लस यू विल बी गिवन पीडीएफ स्टडी मटेरियल एंड देयर विल बी डाउट क्लियरिंग सेशंस. इंटेंसिव रोज क्लासेस होंगी, तो आपको ट्रेन किया जाएगा, प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. और ये जो बैचेस है ना, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, बाइलिंगुअल में भी है. दिस बैचेस आर इन 3 फॉर्म्स, इंग्लिश, हिंदी एंड बाइलिंगुअल. हिंदी के लिए ये रहा लक्ष्य 2021 का बैच. दिस इज द बाइलिंगुअल बैच एक्सपीडिशन एंड दिस इज द इंग्लिश बैच. एंड आई एम टेकिंग हिस्ट्री क्लासेस. आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक सोशियोलॉजी एंड एसे क्लासेस एज वेल. ओके, तो ये दीज क्लासेस आर गोइंग टू कवर योर एंटायर सिलेबस बिफोर प्रीलिम्स. प्रीलिम्स से पहले आपका कवर हो जाएगा सिलेबस. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 18th of Jan. 18 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है. सिमिलरली वी हैव 1 year बैच एंड वी हैव 2 year बैच. ऐसा ही हमारे पास 1 साल का बैच शुरू हो रहा है और 2 साल का. एंड एनसीईआरटी बैचेस आर ऑल्सो देयर इफ यू आर अ बिगिनर. अगर आप एक फ्रेशर हो ना, तो एनसीईआरटी बैचेस भी होने वाले हैं स्टार्ट 18th Jan से. क्लास 6 to class 12 ऑल दी सब्जेक्ट एनसीईआरटीज. Okay, so over here in all the languages, you can also use this code Sharma20 to get 10% discount also in your subscription. अब ये batches ना 18th Jan से शुरू हो रहे हैं. I'm going to start taking the classes on medieval Indian history for mains and prelims from 18th Jan. ठीक है, तो मैं मेंस medieval Indian history की classes लेने वाली हूँ 18th Jan से. तो अगर आप interested हो, if you are interested, ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आप किसी भी मीडियम से हो, आप इस आप इस सब्सक्रिप्शन को ले सकते हो. अभी 18 से पहले ले सकते हो, बिकॉज 18 से फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी. एंड द क्लासेस आर डिजाइंड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. तो आपका टाइम टेबल बन जाएगा. ठीक है, थ्रू अ पर्टिकुलर टाइम टेबल यू विल बी ट्रेन्ड. इन बैचेस में आपको एक टाइम टेबल के फॉर्मेट में ट्रेन किया जाएगा, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. You will not get distracted if you are in a batch. Plus daily test होते हैं. I take daily test. I evaluate the answers also. मैं answers भी evaluate करती हूँ बच्चों के. ठीक है, तो हम answer writing practice भी करते हैं. So you can take this subscription. Use this code Sharma20 to get 10% discount on your subscription. And the link is also given above. Comment section में आप देखोगे link भी दिया हुआ है. ठीक है, तो इन बैचेस को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, if you are giving your attempt in 2021, then till which date you should cover your current affairs. आप कब तक कवर कर सकते हो current affairs? So right now it's January 2021. अभी जैन चल रहा है. If you are preparing for 2021, that is 27 जून के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके current affairs कम से कम अप्रैल तक कवर हो जाने चाहिए. 4 months के अंदर.
ठीक है, विद इन 4 months योर करंट अफेयर्स शुड बी कवर्ड एंड इट इज नॉट एन अनअचीवेबल टारगेट। ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है बात? This is not an unachievable target. You can do it. Along with covering the current affairs, simultaneously आज से ही टेस्ट देना शुरू कर दो। Free test series are being launched on Unacademy's learning app. T20 का डेली करंट अफेयर्स जो टेस्ट हैं वो रोज आते हैं, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो रोज टेस्ट देने हैं आपको साइमल्टेनियसली। इवन इफ यू आर स्कोरिंग 0 मार्क्स, मान लो आप 0 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, नो इश्यूज, डोंट बी डिसहार्टेंड, ठीक है। अगर आपके 0 मार्क्स भी आ रहे हैं, डिसहार्टन नहीं होना, बिकॉज देन यू आर प्रिपेयरिंग द सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस तो प्रिपेयर कर रहे हो ना, यू आर एनहांसिंग योर नॉलेज, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना है? टिल व्हेन यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर? यू हैव टू स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर 1 month बिफोर योर प्रीलिम्स, ठीक है। आप अपने प्रीलिम्स के 1 महीने पहले न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ सकते हो, एंड नॉट इवन 1 month, 15 days बिफोर योर प्रीलिम्स, ठीक है। अपने प्री के 15 दिन पहले तक न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि 1.5 महीने पहले पेपर बन जाता है, ठीक है। आपका पेपर 1.5 महीने पहले सेट हो जाता है। 1.5 months बिफोर योर प्री, योर पेपर क्वेश्चन पेपर इज सेट। सो 15 days बिफोर प्रीलिम्स यू कैन स्टॉप रीडिंग द न्यूज़पेपर, ठीक है। 15 दिन प्रीलिम्स से पहले न्यूज़पेपर पढ़ना आप छोड़ सकते हैं। देन आफ्टर गिविंग योर प्रीलिम्स एग्जाम, फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ कवर द बैकलॉग्स एंड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर मेंस। प्रीलिम्स देने के बाद नेक्स्ट डे से ही आप अपने बैकलॉग्स जो पिछले 15 दिन के रह गए हैं उसको कवर करोगे और आगे के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे मेंस के लिए, ठीक है। और बताए, अभी अगर आप 2 साल के करंट अफेयर्स 4 महीने में कवर कर लेते हो तो क्या होगा? इफ यू कवर योर लास्ट 2 years करंट अफेयर्स इन दीज 4 months, व्हाट विल हैपन? You will be prepared for mains also. Then in mains, you will be in a position to revise them efficiently. आपको पूरा एफर्ट फिर से पढ़ने में नहीं लगाना पड़ेगा, आप रिवाइज कर लोगे, आपकी रिवीजन चल रही होगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो आपके मेंस में ना आपके ऊपर से बर्डन हट जाएगा अगर आप अभी मेहनत कर लेते हो, और अभी आलस कर लोगे तो मेंस में काफी बर्डन आ जाएगा अगर प्रीलिम्स निकल भी गया, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द बर्डन इज लिफ्टेड फ्रॉम योर हेड, कंप्लीट द करंट अफेयर्स नाउ ओनली, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस दी लास्ट 10 years प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। इसको प्रैक्टिस किए बिना मत जाना। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज इफ यू विल एनालाइज द क्वेश्चन पेपर्स ना, क्वेश्चंस आर रिपीटेड, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर को, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल इन 2017 एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 वर रिपीटेड। 2013 के और 2015 के मिलाकर टोटल 15 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 15 क्वेश्चंस मींस 30 मार्क्स। मान लो आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए, कम से कम 30 नंबर तो आपके फिक्स हैं, ये समझ लो, ठीक है। 20 to 30 marks are fixed if you are covering the last 10 years question paper. आपका कॉन्फिडेंस कितना ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एक एक नंबर काउंट करता है, इवन 1 mark काउंट्स, और आपको कम से कम 120 प्लस टारगेट करना है प्रीलिम्स में। तो 30 नंबर तो यहाँ फिक्स हो गए अगर आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, अच्छे से रिवाइज कर लिए, लर्न कर लिए, समझ लिए, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सेम अप्लाइज टू मेंस ऑल्सो। यू हैव टू प्रैक्टिस इन मेंस लास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर। मेंस में पिछले 5 साल के, बिकॉज पैटर्न हैज चेंज्ड ना, दैट्स व्हाई पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर मेंस में प्रैक्टिस करने हैं, एंड इन प्रीलिम्स लास्ट 10 years क्वेश्चन पेपर यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। इन 4 months यू हैव टू फिनिश देम ऑफ। 4 महीने के अंदर आपको फिनिश ऑफ करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम 18th of Jan on Unacademy Plus, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑन एसे ऑल्सो, मे बी आई विल बी टेकिंग क्लासेस ऑन सोशियोलॉजी ऑल्सो। हो सकता है कि मैं सोसाइटी के ऊपर भी क्लासेस लूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1 एसे एंड एथिक्स, ओके। तो एसे का भी क्लास में लेने वाली हूँ, हिस्ट्री क्लासेस आई एम टेकिंग। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी प्लस। मेक श्योर कि आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड यू आर यूजिंग दिस कोड शर्मा20 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। द लिंक इज ऑल्सो गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऊपर कॉमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज ही अनअकैडमी ऐप को आप विजिट करके वहां पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, एंड यू कैन वॉच दी क्लासेस ऑन लैपटॉप, ऑन योर डेस्कटॉप पीसी, ऑन योर मोबाइल फोन्स, एनी गैजेट आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई ऑल्सो। ईएमआई का भी ऑप्शन होता है, अगर वन टाइम पेमेंट नहीं हो पा रही है तो ईएमआई भी कर सकते हो। प्लस यू कैन सब्सक्राइब टू ऑप्शनल ऑल्सो। इफ यू जस्ट वांट टू टेक ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, ओके। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन।
सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय किया, आपको समझ आया। ठीक है, द स्ट्रैटेजी यू एंजॉयड इट, हाउ टू कवर इट, हाउ मच डेज टू इन्वेस्ट इन द करंट अफेयर्स, हाउ टू कवर इट, फ्रॉम वेयर टू कवर इट. On this note, we are wrapping up this session. Thank you everyone for participating in the class.